Hello students, once again welcome back to the channel. I hope you all are fine. So we are back again with the new video, and in this video we are going to discuss class 12 computer science sample question paper released by CBSE for the session 2023-24, section D, which consists of two questions, question number 31 and 32, which carries 4 marks each. If you want to see the solution and explanation of the other sections as well as the questions, you can check out the link in the description box. From there, you will be able to get all the solutions and explanations of all the other above parts. Now let us start with the explanation of section D, question number 31 and question number 32. So here we are having the first question based on the MySQL chapter. Here we are having two tables, product and brand table, and here we are having some fields of the table product, that is P code, P name, that is product code, product name, unit price, rating, and BID. BID is a brand ID. Then we have the table brand, which has two fields, brand ID and brand name. Now we can see here that in the two tables, one common field is there, which is BID, that is a brand ID. Now, based upon these two tables, we are having some statements for which we have to write down the SQL queries. So let us understand them one by one. So the first part here says display the product name and the brand name from the table product and brand. So we need product name and the brand name. Product name is in the table product and the brand name is in the table brand. So for this, our answer here will be select P name, comma, then we have the brand name, that is B name, from table name is product and the second table name is brand. And since we are taking the data from both the tables, we need to match कि जो दोनों में common column है वो match करे, वो match करना पड़ेगा. तो हम कहेंगे where product dot BID is equal to brand dot BID. So that should be our answer number 1. That is the answer of the first part. Okay, you can see here also कि ये हमारे पास है P name, B name from product P, brand B. तो यहाँ पे इन्होंने जो P और B लिया है, ये इसका अलाइस नेम लिया है. आप डायरेक्ट नेम भी यूज कर सकते हो या फिर आप इसमें अलाइस नेम को भी यूज कर सकते हो इन द इक्वालिटी कंडीशन. नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट. द सेकंड पार्ट सेज डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल प्रोडक्ट. So in order to display the structure of the table, what is the meaning of structure of the table? This is my table product. Structure का मतलब होता है कि उस पूरे टेबल में हमारे पास कितने फील्ड्स हैं, हर फील्ड का नाम, क्या क्या उनके डेटा टाइप हैं, क्या हमने किसी को प्राइमरी की सेट किया है या नहीं किया, या कोई पर्टिकुलर जो कॉलम है उसमें कोई कंस्ट्रेंट सेट तो नहीं किया, ऑल दीज थिंग्स. तो इन ऑर्डर टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑफ द टेबल, हमारे पास जो कमांड होती है दैट इज DESC, और उसके बाद हम लिखते हैं अपने टेबल का नेम, दैट इज प्रोडक्ट. ठीक है. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट. नाउ द थर्ड पार्ट. द थर्ड पार्ट सेज display the average rating of Medimax and Dove brands. Display means select statement, average rating. So whenever we have to perform the calculation like sum, maximum, minimum, कुछ भी हमें इस तरह से शो करना हो, we make use of the aggregate function. और average निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है AVG नाम से, और ब्रांड का नाम क्या है, Medimax and Dove. तो यहाँ पे देखते हैं कि जो Medimax और Dove है, यहाँ पे है हमारे पास दिस इज Medimax, दिस इज Dove. Medimax का जो कोड है, ब्रांड आईडी है, दैट इज M03 और Dove की M05 है. अब हम अपने टेबल प्रोडक्ट में जाएंगे तो M03 ब्रांड आईडी से हमारे पास रेटिंग एक 6 है और एक 7 है. तो इन दोनों का एवरेज चाहिए जो कि Medimax की है, और M05 की 2 रेटिंग है, एक 5 है और एक 6 है. तो इन दोनों की हमें अगेन एवरेज चाहिए. तो जो भी चीज़ आपको डिस्प्ले करानी है उसके लिए आप क्या लिखोगे, यू विल मेक यूज ऑफ द सेलेक्ट स्टेटमेंट. तो हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, क्या क्या चाहिए हमें, वी नीड एवरेज रेटिंग. तो एवरेज के लिए हमें फंक्शन लगाना है, एग्रीगेट फंक्शन, एवरेज रेटिंग फ्रॉम टेबल नेम इज प्रोडक्ट कोमा ब्रांड. 2 टेबल का नेम हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों टेबल की ब्रांड आईडी को मैच करा के ही वो डेटा लेना पड़ेगा. अब इसमें दोनों ही टेबल में ब्रांड आईडी कॉमन कॉलम है, तो दो Medimax की जो ब्रांड आईडी है M03 वो दोनों में है, ऐसे Dove की भी दोनों में. तो इसमें हम लिखेंगे वेयर प्रोडक्ट डॉट BID इज इक्वल टू ब्रांड डॉट BID. ठीक है. इसके बाद हम क्या लिखेंगे,
नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर है कि हमें ब्रांड के नेम के अकॉर्डिंग एवरेज रेटिंग दिखानी है। तो सिमिलर टाइप ऑफ ब्रांड की आपको दिखानी है, जैसे कि आपके मेडिमिक्स के 2 हैं और डव के भी 2 हैं, तो इनकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ग्रुप बाय बी नेम, ठीक है। और आप इसमें कंडीशन क्या देंगे, जिसमें ब्रांड नेम मेडिमिक्स या डव हो, हैविंग बी नेम इज इक्वल टू मेडिमिक्स और बी नेम इज इक्वल टू डव। तो दिस शुड बी आवर कमांड व्हाइल सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। एवरेज रेटिंग डिस्प्ले करानी है, दोनों टेबल लेनी है क्योंकि प्रोडक्ट ब्रांड आईडी दोनों की मैच करनी पड़ेगी। वेयर प्रोडक्ट डॉट बी आई डी इज इक्वल टू ब्रांड डॉट बी आई डी। ग्रुपिंग करेंगे बी नेम के अकॉर्डिंग, हैविंग बी नेम इज इक्वल टू मेडिमिक्स और डव। तो मेडिमिक्स वाले की एवरेज 6 + 7 करके आपकी आ जाएगी, 6 + 7 आपका हो गया 13, 13/2 करके आपका आ जाएगा 6.5, ठीक है। और ऐसे डव वाले की 2 हैं, 5 एंड दिस वन दैट इज 6, 5 + 6/2 दैट इज 11/2 दैट इज 2.5, ठीक है। इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेरी लिखनी है, आउटपुट नहीं लिखना। फोर्थ पार्ट इज डिस्प्ले द नेम, प्राइस एंड रेटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। 3 चीज़ें चाहिए, नेम, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का प्राइस और उसकी रेटिंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेटिंग। तो हम यहाँ से चेकआउट करते हैं कि जो प्रोडक्ट का नेम है वो कौन से कॉलम में है। प्रोडक्ट का नेम इज इन पी नेम, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट पी नेम कॉमा, प्राइस कहाँ पे है, यू प्राइस में, और हमें क्या चाहिए, रेटिंग चाहिए। तो हमें क्या क्या चाहिए, सेलेक्ट पी नेम, यू प्राइस कॉमा रेटिंग। ये तीनों ही हमारे कौन से टेबल में है, प्रोडक्ट टेबल में है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद आपने क्या लिखना है, आपको इसको प्राइस के डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो जिस भी ऑर्डर में चाहिए उसके लिए हमारा क्लॉज होता है ऑर्डर बाय, यू प्राइस DESC दैट इज डिसेंडिंग। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑर्डर बाय दैट इज रेटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेटिंग। अच्छा, रेटिंग के हमें चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू प्राइस के प्लेस पे रेटिंग, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट हैं। एक बार हम इसका आंसर भी चेकआउट कर लेते हैं। इसी तरह से वी हैव द आंसर्स ऑफ द सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट, ठीक है। इसी तरह से जो हमने लिखे हैं वही इसके आंसर्स हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कहता है, वेदांश इज अ पाइथन प्रोग्रामर वर्किंग इन अ स्कूल। For the annual sports event, he has created a CSV file named result.csv to store the result of the students in the different sports events. The name of my file is result.csv, जिसमें different sports event के students के result को store किया जाएगा। And the structure of the file result.csv is student ID, student name, game name and result. इस फाइल के अंदर 4 चीज़ें रहेंगी, स्टूडेंट की आईडी, उसका नेम, उसके गेम का नेम जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया और उसका रिजल्ट। आइदर इट कैन बी वन, लॉस्ट और टाई, ठीक है। अब इस डेटा को एफिशिएंटली मेंटेन करने के लिए वेदांश वांट्स टू राइट द यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक यूजर डिफाइंड फंक्शन रहेगा एक्सेप्ट, जिससे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को लिया जाएगा और फाइल में ऐड किया जाएगा। फाइल का नाम रहेगा result.csv और कॉलम की हेडिंग्स ऊपर आनी चाहिए। और एक फंक्शन होगा वन काउंट के नाम से, ये काउंट करने के लिए कि कितने स्टूडेंट्स हैं who have won any event. As a Python expert, you have to help him to complete the task. ठीक है, to count the number of students who have won any event. ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले CSV फाइल के साथ काम करेंगे and we will check the name of the file that is result.csv. और CSV फाइल के साथ जब भी हम काम करते हैं, कोडिंग लिखते हैं, तो we need to import a module which is the CSV module. So in this case we need to write down here import CSV and we need to specify the name of the function here which is accept. ये करने के बाद आपको अपनी फाइल को ओपन करना है। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। हमारी फाइल का नाम है result.csv, तो हम लिखेंगे ओपन result.csv और हमने इसको ओपन कर दिया सपोज राइट मोड में, राइट या अपेंड मोड किसी में भी आप ओपन कर सकते हो। एंड न्यू लाइन हमने दे दिया एम्प्टी स्पेस, ठीक है। अब हमें इसका एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाना है। मान लीजिए उसका हमने नाम रख दिया CSV राइटर।
और इसके लिए हमारा जो फंक्शन होता है दैट इज़ अ राइटर फंक्शन एंड हियर इट विल कम एज अ फाइल हैंडल। ठीक है, अब हमें हेडिंग में ये चाहिए स्टूडेंट आईडी, नेम, गेम नेम एंड रिजल्ट। तो ये हमारी पूरे डेटा की टेबल की हेडिंग है, इट इज़ अ सिंगल रो। तो इसको राइट कराने के लिए हमारे पास फंक्शन होगा राइट रो। तो हम कहेंगे पहले राइटर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, डॉट राइट रो को लिखेंगे, और ब्रैकेट में हम ये डेटा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, दैट इज़ आर लिस्ट। कॉपी किया इसको और यहाँ से हमने इसको इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ये करने के बाद आपको ये हेडिंग्स जो हैं इनको कोट्स में देना है बिकॉज ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ है। इस तरह से स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, देन गेम नेम एंड द रिजल्ट। ठीक है, ये देने के बाद आप क्या करेंगे, यू नीड टू टेक एन एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि यूज़र से डेटा को एक्सेप्ट किया जाए, स्टूडेंट्स के डेटा को, जब तक जो स्टूडेंट है वो नो प्रेस नहीं करता। तो हमने एक लूप चला दिया व्हाइल ट्रू। 4 चीज़ें हमने लेनी है, एक स्टूडेंट की आईडी लेनी है, एक स्टूडेंट का नेम लेना है, एक गेम का नेम लेना है और एक रिजल्ट लेना है। अब हम यूज़र से इसको इनपुट कराएंगे, आईडी इंटीजर में ले सकते हैं। इनपुट हमने लिखा एंटर आईडी। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट का नेम लेंगे, इक्वल्स टू इनपुट एंटर नेम। उसके बाद गेम का नेम लेंगे, इक्वल्स टू इनपुट एंटर गेम नेम। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे रिजल्ट, whether the student has won, it is a tie or the child has lost. Input enter result। ठीक है, अब ये जो है डेटा ये हम एक लिस्ट के अंदर डलवा देंगे एंड जितने भी यूज़र डेटा एंटर करेगा फिर वो एक नेस्टेड लिस्ट में डलता जाएगा। हमने डेटा के अंदर डाल दिया एस आई डी कॉमा एस नेम कॉमा गेम नेम कॉमा रिजल्ट। ठीक है, ऊपर जो हमने यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट ली है आर, इसके अंदर हम इस डेटा को अपेंड करा देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो फर्स्ट स्टूडेंट है हमारा, आईडी 1 है, नेम रोहन है, गेम क्रिकेट है, रिजल्ट 1 है, तो वो हमारा डेटा में गया। फिर दूसरी लिस्ट बनी, तो ऐसे करके जितने भी यूज़र इनपुट कराएगा, जितने भी स्टूडेंट का डेटा इनपुट कराएगा उतनी नेस्टेड लिस्ट बनती जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या किया, पूछेंगे हर एक रिकॉर्ड को एंटर करने के बाद पूछेंगे कि इफ़ यू वांट टू एंटर मोर और नॉट। तो हमने यहाँ से CH के अंदर यूज़र से एंटर कराया वांट टू एंटर मोर। अगर यहाँ पे यूज़र हमें देता है इफ़ CH स्मॉल n या कैपिटल N में से अगर हमें देता है तो वहाँ हमें ब्रेक करा देना है। नो के अलावा कुछ भी हमें देता है तो हमें यूज़र से एंटर कराना है। ठीक है, नो दे दिया तो ब्रेक, अब ब्रेक करा दिया तो हम ये सारा डेटा राइट करा देंगे अपनी फाइल में विद द हेल्प ऑफ द राइटर ऑब्जेक्ट CSV राइटर डॉट राइट रोज। ठीक है, व्हाट वी नीड टू पास हियर दैट इज द लिस्ट विच इज आर। ठीक है, राइट रोज फंक्शन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो डेटा है वो हमारा एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अगर सिंगल डेटा होता तो सिर्फ राइट रो यूज़ करते, एक ही स्टूडेंट का डेटा होता, लेकिन एक से ज़्यादा स्टूडेंट का डेटा ले रहे हैं तो यहाँ पे राइट रोज फंक्शन का यूज़ होगा और यहाँ पे हम अपनी फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। एंड देन हियर वी हैव टू कॉल द फंक्शन दैट इज़ द एक्सेप्ट फंक्शन। अब हम इसको एक बार इतना रन करके चेकआउट करते हैं। वैसे इसके आगे हमें एक और फंक्शन भी लिखना है 1 काउंट के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले आईडी डाली 1, नेम डाला रोहन, गेम डाला क्रिकेट एंड रिजल्ट लिख दिया 1। फिर वांट टू एंटर मोर, यस, आईडी डाली 2, नेम डाला प्रिया, गेम डाला बास्केटबॉल एंड रिजल्ट डाला टाई। फिर हमने डाला वांट टू एंटर मोर, यस, आईडी डाली 3, नेम डाला ऋषि, गेम डाला वॉलीबॉल एंड रिजल्ट डाला लॉस्ट। फिर आपने कहा वांट टू एंटर मोर, नो कर दिया। बस इतना डेटा हमारी फाइल में राइट हो गया। तो ये डेटा कहाँ राइट हुआ, इसके लिए आप फाइल में जाओगे, ओपन में जाओगे और यहाँ से आपने कर देना है ऑल फाइल्स। आपकी फाइल का क्या नाम है, रिजल्ट नाम है। ठीक है, यहाँ से आप इसे नोटपैड में डायरेक्ट ऐसे चेक कर सकते हो ये जो डेटा हमने दिया। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ओपन में जाके यहाँ से आपने ऑल फाइल्स करना है, यहाँ पे सिंपली लिखना है रिजल्ट और यहाँ से सर्च कर लोगे आप अपनी रिजल्ट वाली फाइल को।
ठीक है, ये आपकी फाइल है, राइट क्लिक किया, इसको आपने किया ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल के साथ जैसे ही ओपन करोगे ये डेटा आपको इस तरह से शीट की फॉर्म में दिखा देगा। ठीक है, तो दिस इज द थिंग वी हैव डन, हमने इसमें डेटा को राइट किया। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, एक और फंक्शन बनाना है। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट फंक्शन? वो फंक्शन का नाम होगा आपका वन काउंट। टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी भी इवेंट को वन किया है, वो स्टूडेंट्स काउंट कराने हैं जिन्होंने वन किया है। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ से एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा वन काउंट। तो इसी के नीचे हम फंक्शन बना देते हैं डेफ वन काउंट। इसी के नीचे हम एक फंक्शन बना देते हैं डेफ वन काउंट। ठीक है, अब हमने फाइल को किस मोड में ओपन करना है? रीड मोड में। तो हमने यहाँ से इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया और इसका मोड चेंज कर दिया, दैट इज रीड मोड। अब हमें इसका एक रीडर ऑब्जेक्ट बनाना है। हमने लिखा csv डॉट रीडर फंक्शन। csv रीडर रीडर ऑब्जेक्ट है जो रीड करने में हेल्प करेगा और रीडर हमारे फंक्शन का नाम है। एंड यहाँ आ जाएगा हमारा फाइल हैंडल फॉर आई इन csv रीडर। जो भी नाम आप यहाँ ले रहे हो ना इसका रीडर ऑब्जेक्ट का, वो लिखना है आपने। इफ, अब देखो उसने ये कहा कि जो स्टूडेंट ने वन किया वो काउंट कराने हैं, तो वो हमें कहाँ से पता लगेगा? रिजल्ट से। और इस लिस्ट में 0 1 2 3 पोजीशन पे हमारा रिजल्ट है। तो हम कहेंगे इफ आई ऑफ 3 इक्वल्स टू 1 है। अगर वो 1 है तो उस केस में हम उसको प्रिंट करा दें और उसे हम यहाँ से काउंट भी करा सकते हैं। काउंट जो हो जाए वो हमारा क्या हो जाए? काउंट प्लस 1 हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे काउंट के नाम से जिसको हमने इनिशियलाइज करा देना विद द वैल्यू 0। ठीक है, आपने इसको प्रिंट करा दिया, काउंट को काउंट प्लस 1 करा दिया। इसको पहले काउंट करा देते हैं और फिर प्रिंट कराते हैं। और लास्ट में यहाँ पे अब उसे प्रिंट कराएंगे और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दे देंगे, प्रिंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वन आर काउंट। ठीक है, और इसके बाद आपने अपनी फाइल को क्या करा देना है? क्लोज। एंड देन वी हैव टू जस्ट कॉल द फंक्शन दैट इज वन काउंट। अब इसको दोबारा से करते हैं प्रोग्राम को। ओके, हियर कॉलन साइन विल कम। नाउ वी आर गोइंग टू चेक इट। id is 1, name is Rohan and game is suppose cricket and result is suppose 1. ठीक है, want to enter more? yes. id is 2, name is Priya, game is basketball, result is suppose again 1. want to enter more? yes. id is 3, name is Rishi and game is suppose badminton and here will come and यहाँ हमने करा दिया suppose lost. want to enter more? no. तो इसने क्या कहा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वन आर, पहले 0 दिया, फिर 1 और फिर 2 दिया, मतलब लास्ट में इसलिए दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वन आर 2। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़े से इसमें चेंजेस करेंगे। जो काउंट है उसे हम लास्ट में ले लेते हैं क्योंकि अदरवाइज ये फोर लूप के अंदर चलता रहेगा। और जो प्रिंट स्टेटमेंट है एक बार हम इसे यहाँ रख के देखते हैं, पर दोबारा से हम इसे रन करते हैं। id is 1, name is Rohan, game is cricket and result is 1. then yes, then id 2, name Priya, game basketball, then result suppose again 1. want to enter more? yes. id 3, name Rishi, then game badminton and result lost and we do not want to enter more. so यहाँ पे इसने जो 1 वाले हैं जो जीते हैं, एक तो रोहन है और एक हमारा प्रिया है, उस सब की डिटेल्स दिखा दी, उनकी आईडी, नेम, गेम और उनका रिजल्ट। एंड कितने स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने जीता है गेम? दैट आर 2। ठीक है, जो ऋषि था लॉस्ट हुआ था उसकी डिटेल्स इट हैज़ नॉट शोन। ठीक है, सो इस तरह से आपको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है स्टूडेंट्स। ये प्रिंट स्टेटमेंट बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे, अदरवाइज ये
जितनी बार फोर लूप चलेगा उतनी बार ही हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वन दिखाता जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस कोडिंग क्वेश्चन. I hope students this is clear to all of you. In case still any doubt is there, you can ask me in the comment section. आप यहाँ पे जाके इसके मार्किंग स्कीम में चेकआउट कर सकते हैं किस तरह से इसकी कोडिंग है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें जैसे कि हमने जो हेडिंग थी वो ऊपर ले ली थी, इन्होंने नीचे ले ली और इन्होंने एक रिकॉर्ड को एंटर कराया और हमने वाइल ट्रू लूप की हेल्प से कराया है, तो वो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो भी लॉजिक के अकॉर्डिंग प्रोग्राम आ रहा है दैट इज़ फाइन। जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको एक रिकॉर्ड यूजर से लेना है, तो आप उसमें वाइल और फॉर लूप ना भी यूज करें, इट डजेंट मैटर। बट इसमें वन काउंट में लिखा था टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव वन एनी इवेंट। सो एक बार प्रोग्राम को प्रैक्टिकली अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमने इसमें वाइल लूप लगाया है। आप नहीं भी लगाते हैं, देयर इज नो सच एनी प्रॉब्लम, ठीक है। हर प्रोग्राम को करने का लॉजिक अपना अपना हो सकता है, आप ये वाला भी ले सकते हैं एंड जो हमने किया वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका कोई अपना करेक्ट लॉजिक है जिससे आपका आउटपुट करेक्ट आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, ठीक है। अब इसमें मार्किंग देख लीजिए कैसे है। सबसे पहले डेटा को करेक्टली एक्सेप्ट कराने के हाफ मार्क्स होते हैं। डेटा कौन सा, जिसमें स्टूडेंट आईडी, नेम, गेम और रिजल्ट ये चीज़ें हैं। फिर फाइल को ओपन करना और क्लोज करने की जो स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक लिखी हैं, हाफ मार्क्स उसके होते हैं। हेडिंग्स जो होती हैं उसको ठीक से लिखने के हाफ मार्क्स होते हैं, और जो आपके रो को राइट करने के राइट रोज के जो फंक्शन होते हैं उसके आपके हाफ मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 फंक्शंस बनाए हुए हैं, तो 2 मार्क्स का एक फंक्शन होगा, 2 + 2 आपका हो जाएगा 4। सेम वे जो आपका वन काउंट फंक्शन है, इसमें हाफ मार्क्स आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल का है, हाफ मार्क रीडर ऑब्जेक्ट बनाने का है, हाफ मार्क्स हेडिंग को प्रिंट करने का है, एंड हाफ मार्क्स आपके डेटा को प्रिंट कराने का है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। So this is how we have solved this question, students. In case आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आज की वीडियो में, तो you can ask me in the comment section. Also you can provide the feedback. And if you find this video helpful, you can like it, share it, and subscribe the channel for more such updates. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.